So now I'm going to start with the way we had left off. That was pi bonds, right? I told you that the first bond that's formed between atoms, that's always a sigma bond, and the rest are then pi bonds. So we did sigma bonds. That the first bond that's always going to be formed between atoms is the electron density is right going to be in the middle. The overlapping would happen right between the two nuclei. And then I told you that the first bond is a sigma bond. Once the first bond is formed, after that, between the same atoms, if any other bond is formed, that is going to be a pi bond because the electron density, the other orbitals would be parallel to each other. So that means they would overlap above and below, resulting in a bond that would stretch above and below, as shown in the diagram. So they're going to be pi bonds. So I'm going to give you an example of a triple bond now. Although they won't ask you to draw a triple bond, but just for the sake of understanding, I mean, they won't ask you to draw it, but they would definitely, I mean, you should definitely know the concept behind that. So let's talk about a triple bond. So what exactly is a triple bond? A triple bond is something that is going to be like if I take nitrogen, triple bond nitrogen. So that means it's going to have one sigma bond and it's going to have two pi bonds. So that is what a triple bond would look like. Now, if you look at nitrogen's electronic configuration, that is going to be 1s2, 2s2, and 2p3. That means 2px is 1, 2py is 1, and 2pz is also 1. So nitrogen needs electrons in 3 of its orbitals. So here's your nucleus, and nitrogen needs electrons in 3 of the orbitals. So that is one of the orbitals. Let's say that is the px orbital. Sir? हाँ जी. सर इसमें px, py और pg तीनों इन्वॉल्व होंगे ना? हाँ, क्योंकि तीनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना. ठीक है. वो बाकी I'm not going to draw the other ones because they're already full, so they don't need electrons. As anyways, let's say this is 2px and there's going to be 2py, 2py blue में कर लेते हैं. So that there is a 2py orbital, and then there's going to be a third orbital which is going to be 2pz. So I'm not going to draw 2pz right now because that's going to be on the z-axis, which is the diagonal axis. I'm going to bring that on later on. So let's think of nitrogen at the moment, consisting of these two orbitals. So here's another nitrogen atom, and you have 2px, and you have 2py. So I have two nitrogen atoms, and these are the two orbitals. So they're going to merge. Both atoms would try to gain each other's electrons. These orbitals are at the moment incompletely filled. This has one electron, this has one electron. So they would overlap in the middle. So there's going to be overlapping that would happen in the middle, and that would form a sigma bond. This orbital over here would shrink in size because the electron density would get pulled to the other side. This orbital over here would also shrink in size because the electron density would now be somewhere in the middle. So most of the electron density would be in the middle. The two orbitals would merge and the two electrons would merge, and that's going to be your sigma bond. Is this clear? Ye clear hai? Yes, sir. अच्छा, Sir? हाँ जी. सर आप इसमें px, py और pg को कौन सा लेबल करेंगे इनमें से? नहीं, px मैंने ये रेड वाला है, ठीक है, that's your px, ठीक है. तो the px have
रिमेंबर वो एक्स वाई जी फर्क नहीं पड़ता, इट कुड बी एनी एक्सिस, ठीक है, लेकिन जो एंड टू एंड ओवरलैप, आई एम जस्ट कॉलिंग देम द px, these are the py orbitals. So the py orbitals are parallel to each other. If they are parallel to each other, what would they do? They would start to overlap above and below the axis, ठीक है. So they are overlapping above and below the axis, and they would start to overlap in this way, ठीक है. So that means the px have bonded and the py have also bonded. Is this clear so far? Yes, sir. So last rah jata, what about the pz? Now remember, the pz is going to be on the z axis. The pz would be on this axis, 3 dimensions. Think of it in 3 dimensions. It's going to be in the z axis. So the pz would be lying on this axis, and the pz would have, pz ka color kya kare, ek second, let's make it, acha, so pz orbital, acha, so the pz orbital would have a lobe that would be coming out of the page and going behind it, ठीक है, on the z axis, and there's going to be a pz over here that would be coming out of the page, and it would be existing behind this. Direction clear है कि pz की? How would the pz look like? Yes, sir. Sir, हाँ, सर आपने एक कहा था कि जब सिग्मा जब एस जो बॉन्डिंग होगी वो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी तो वो श्रिंक करेगा साइज में, तो जो बाकी होंगे वो तो श्रिंक नहीं करेंगे ना साइज में? नहीं, वो तो इस साइड वाला लोब श्रिंक कर जाता था ना. वो तो ये था, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, तो p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं, सॉरी, अच्छा, व्हाट हैपेंस इज व्हेन p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में मैक्सिमम हो जाती है और साइडों में फिर श्रिंक कर जाती है. द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट, आई मीन द इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू बी हियर, ठीक है, क्लियर है? यस सर. नहीं सर, जो पाई बॉन्ड्स होंगे उन पे तो कोई मतलब वो तो एग्जैक्टली सेम रहेंगे ना? नहीं, वो भी चेंज हो गया ना कंप्लीटली. पहले तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था ना, अब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ पे, वो यहाँ पे इस जगह पे कहीं बीच में, या वो इस तरह आप कह रहे हो कि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी है, साइडों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहाँ पे मैक्सिमम है, इधर बीच में, क्लियर है? ओके सर. तो शेप तो उनकी भी चेंज हुई है. अच्छा, खैर, कमिंग बैक टू दिस, थिंक ऑफ दिस इन 3 dimension. They're not going to ask you about the drawing. तो ये जो ऑरेंज वाले, what they would do is they would start to overlap in front and behind it, ठीक है. So there's going to be overlapping that would happen in front of it, ठीक है, in front, and also वो बैक साइड के ऊपर भी, ठीक है. वो बैक साइड तो नजर नहीं आ रही. So there's going to be overlapping that would be happening. Overlap. रोटेशन नहीं हो, क्या? रोटेशन. It's like rotation. मतलब वो independent rotation तो possible ही है ना when there's a pi bond. मतलब इस साइड को पकड़ के मैं I can't twist it independently. क्योंकि अगर मैं ये जो पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे से वो नहीं कर रहे, मतलब रिपल्जन नहीं हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंदर ही है, मतलब वाई के अंदर ही जी, तीनों एक दूसरे के अंदर. नहीं, इसको 3 dimension में सोचो ना कि ये ऊपर है, ब्लू वाला जो है वो ऊपर और बॉटम पे है ना. बारी के पहले तो px था, p ऑर्बिटल था यहाँ पे यूं इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी देयर वाज अ p ऑर्बिटल. वो दोनों ओवरलैप किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ गई, क्लियर है? वो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है. जी सर. फिर वो जो ब्लू वाला जो था पी वाई, वो वर्टिकल थे ना, वर्टिकल थे, तो ओवरलैपिंग ऊपर से हुई है और नीचे से हुई है, ठीक है. तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं और पड़े हुए ना, वो ऊपर है और वो नीचे है. और फिर ये जो ऑरेंज वाला है ना, ये पीजेड है आखिरी. पीजेड जो है ना, वो सामने से ओवरलैपिंग हो रही है, आप समझो आपके पेज से बाहर आ रहा है ये, ठीक है, और पेज के बैक साइड से हो रही है. समझ आइए? जी सर, वो 3D है, मतलब समझ आ गया. हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन सारे कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है, वो सारे अलग अलग है. एक सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बीच में है. ब्लू वाले जो
पाई बॉन्ड बन रहा है उसके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर और नीचे हैं, और जो ऑरेंज वाला जी एक्सिस पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो फ्रंट पे मतलब सामने से हो रही है और बैक साइड से हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, सो a triple bond is the only bond you don't get quadruple bonds क्योंकि there's no space left, क्योंकि बीच वाला एरिया भी ऑक्यूपाई हो गया, टॉप और बॉटम वाला एरिया भी ऑक्यूपाई हो गया, फ्रंट वाला भी ऑक्यूपाई हो गया, बैक साइड वाला भी ऑक्यूपाई हो गया, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है। सो देयर इज नो फर्दर, there's not going to be any further bonding that is possible now between two atoms. Is this clear? तो मैक्सिमम जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड, उससे ज्यादा यू कांट मेक अ बॉन्ड, you can't make a tetra bond, that is not possible, ठीक है? Is this clear? यस सर, ये सारे पी बॉन्ड बनेगा ना, कौन सा? जैसे ये ओ सर, ये सारे मतलब नाइट्रोजन के सारे पी दोनों के एक दूसरे से पी बॉन्ड कर। हाँ, वो इसका पी और इसका पी, लेकिन वो एक एक बीच में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है जो पहला वाला है, क्योंकि वो तो एंड टू एंड ओवरलैप कर रहा है ना, ठीक है। और बाकी फिर पैरेलल में आ जाते हैं, पैरेलल में जब आते हैं दे फॉर्म अ पाई बॉन्ड। क्लियर है? जी सर, सर हमेशा मतलब अगर ऐसे कोई डबल ट्रिपल है उसमें एक ही हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो हाँ एक ही स्ट्रेट बॉन्ड बनते हैं। हाँ सर हाँ जी। सर तो ये नॉर्मली कितने मार्क्स के क्वेश्चन आता है? अच्छा, नॉर्मली मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह आएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, वो आपसे सिंपल कहेगा, मतलब दो तीन मार्क का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, वो कहेगा कि शो करो कि, अच्छा हर दफा पाई बॉन्ड की शक्ल तो यही है ना, मतलब पाई बॉन्ड की शक्ल याद रख लो, ये शक्ल है ना पाई बॉन्ड की। तो जब, और पाई बॉन्ड कब होता है? जब जब भी डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तब पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक पाई बॉन्ड होगा, there's only going to be one पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में there's going to be two पाई बॉन्ड्स, मतलब एक ऊपर और नीचे होगा और एक फ्रंट पे होगा और उसकी बैक साइड पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा, क्वेश्चन आएगा कि वो कहेंगे कि ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन, कि शो वन पाई बॉन्ड in this molecule HCN। तो अब आपको ना, रिमेंबर क्वेश्चंस बहुत आसान आएंगे, अब आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसे बस शो वन पाई बॉन्ड, ठीक है। मुझे तो पाई बॉन्ड होगा कहाँ, H और C के बीच में या C और N के बीच में? सी और एन के बीच में। तो पाई बॉन्ड वहां पे होगा, तो आपने सिर्फ एक ही शो करना है। तो H ड्रॉ करो, ये C है और ये N है, और इनके बीच में पाई बॉन्ड शो कर दो। पाई बॉन्ड क्या होगा? एक ऑर्बिटल होगा C का और एक ऑर्बिटल होगा N का, and they would overlap above and below। Clear है? That's it। सर तो थर्ड बॉन्ड शो नहीं करना? नहीं, उसने कहा है एक ही शो करो, तो बस एक ही शो करो। जो जो थर्ड वाला होगा वो फिर पेज से बाहर आ रहा होगा, वो थ्री डायमेंशनल हो जाएगा ना। जो थर्ड वाला होगा दैट वुड बी ऑन द जी एक्सिस ना, मतलब एक और पाई बॉन्ड होगा व्हिच वुड बी ऑन द जी एक्सिस। तो वो सामने से आ रहा होगा, मतलब उसके फ्रंट से ओवरलैपिंग हो रही होगी, उसकी बैक साइड से ओवरलैपिंग हो रही है। तो वो तो कभी भी शो करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इतनी अच्छी ड्राइंग तो किसी की भी नहीं होती। तो आपने तो खाली मतलब यही, अच्छा यही शो करना होगा, ठीक है। सर हाँ जी। सर तो लाइक अगर वो क्वेश्चन में अगर लाइक उनका यही एक क्वेश्चन हुआ तो बाकी बॉन्ड्स तो हम लोग शो नहीं करेंगे ना? हाँ, वो करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए वो कहता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इथीन पे आते हैं, वो कहते हैं मैं शो करो कि शो पाई बॉन्डिंग इन इथीन। अच्छा, पाई बॉन्डिंग इन इथीन। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज के इथीन का मॉलिक्यूल ये होता है। तो पहले तो कि ये पाई बॉन्ड किसके बीच में, किन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है? सर सी एंड सी।
तो यहाँ पे बन रहा है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप शो करो, इसको सिंगल बॉन्ड कर दो, क्योंकि पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है ना, तो वो शो करने की भी जरूरत है, उसको बस डैश से शो किया हुआ है। पाई बॉन्डिंग शो करनी है तो पाई बॉन्डिंग शो कर दो, इसका ऑर्बिटल जो है वो उसके ऑर्बिटल के साथ पैरेलल में इट्स गोइंग टू ओवरलैप। बस, और इसको शेड कर दो, ठीक है। बस शेडिंग करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है। दैट्स योर पाई बॉन्ड। तो क्वेश्चन सिंपल होगा, बस द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज यू शुड नो कि वेयर द पाई बॉन्ड इज। तो इतना डिटेल कोई नहीं वो पूछने वाले। आपने बस वो ओवरलैपिंग शो कर देनी है, या तो इस तरह शो कर दो, इस तरह सर शो कर, हाँ जी। सर वो इथीन का जरा डायग्राम शो कर दें। एक सेकंड शो कर दो, ये ठीक है। ओके सर। तो क्वेश्चंस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, तो आपको बस याद रखना है व्हाट यू जस्ट हैव टू conceptually remember is कि you've got sigma bonds, you've got pi bonds, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स में भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मतलब बड़ा रेयरली आएगा कि वो कहें कि मतलब एक मॉलिक्यूल में ढेर सारे सिग्मा बॉन्ड्स है आपको। अच्छा, काउंटिंग के बहुत आएंगे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन सिग्मा बॉन्ड्स के भी बहुत सिंपल आएंगे, ऐसे ओवरलैप कर दो, एच एच का बॉन्ड शो कर दो, एच एफ का शो कर दो, या फिर एफ एफ का शो कर दो कि पीपी ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। पाई बॉन्डिंग बस आप देख लो कि जब भी पहला बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा दिस विल बी अ पाई बॉन्ड, तो उनके बीच में ना जस्ट ड्रॉ दिस, दैट्स इट। इथीन में पाई बॉन्ड शो करना है, जस्ट ड्रॉ दिस, दैट्स इट, दैट्स योर पाई बॉन्ड। अब अच्छा, एंड यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट काउंटिंग, ठीक है, कि काउंट करो भाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो a lot of questions on this, और आइडेंटिफाई करो कि सिग्मा कौन सा है, पाइप कौन सा, which is very easy, but I'll just quickly show you questions where can't get question, yes। तो क्वेश्चंस में शो कर देता हूँ। So ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। So for example, अच्छा एक मसला है कि skeletal फॉर्मूला नहीं किए हुए, just a second, let me, so this one, सर हाँ जी। सर हमारे पास तो इस चैप्टर में कोई कैलकुलेशंस तो नहीं होगी ना? नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में तो कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है, भाई वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स भी मतलब कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन द क्वेश्चंस वुड बी वेरी सिंपल। तो इसमें बताओ कि कितने, वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, राइट। तो पहले तो काम करना है कि इस मॉलिक्यूल को जरा एक्सपैंड करके ड्रॉ करो। CH2 का मतलब क्या होता है, दैट्स CH2 means C with two H's, right? CH का क्या मतलब होता है, C with H। This is also CH2, so that's C with two hydrogens and CH2, तो उसका मतलब है कि C with two hydrogens, CH कितने बन रहे हैं? 17 शायद। अच्छा, अब काउंट करना शुरू करो। पहले तो मैं सिंगल बॉन्ड सारे क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं, सो दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो सिंगल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो वो तो सारे सिग्मा होते हैं, तो 15 हो गए। और डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं? So 1। तो पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, सो दैट इज 16 17 एंड 18। तो आंसर क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी 18, ठीक है। फिर वो है कि और भी इस तरह के होंगे, इनमें से which one is a pi bond? तो ये मेरे बारी बारी बताओ, पीपी ओवरलैप कौन सा वाला है? पीपी ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, बी। नहीं, पीपी ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, ए वो ए है। और ए पीपी होगा। पीपी ओवरलैप जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा? सर डी। डी। नहीं, डी नहीं है, डायगोनल में थोड़ी ओवरलैप करते हैं, वो ये है,
वो उसने इस तरह शो किया हुआ है, हम ऐसा कर रहे थे ना कि वो न्यूक्लियस और ओवरलैप कर रहे हैं, राइट? जी सर। तो तो उसने वो वो दिया ही नहीं ने। नहीं, वो ये सर ये तो एस एस नहीं है, क्योंकि आप नहीं, ये एस एस का होता है ना और सर्कल से वाला। देखो ना, ये पी है ना, पी, ओ अच्छा ठीक है सर। और ये दूसरा पी है, और वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है? वो ठीक है सर। उसकी बस ड्राइंग इस केस में, मतलब वरना कभी उसने ये ड्राइंग बनाई थी, कभी सब बनाई होती है, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज। सर हाँ जी। सर तो क्या ये मतलब डंबल शेप्ड होगा तो किसी कंफ्यूजन तो होगी हमें। क्या? लाइक अगर ये इन्होंने स्फेरिकल दिखाया तो वो नॉर्मली डंबल शेप नहीं होता। नहीं, ये भी डबल शेप ही है, उसने कुछ ज्यादा ही वो डबल शेप कर दिया ना, कि उसने यू कर दिया और बिल्कुल ही स्फेरिकल कर दिया, तो है तो अभी भी पी ना, मतलब उसने उससे उसे मतलब है तो पी ना, पी में क्या था, पी पी वाज बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एक्सिस पे होगी ना, ऊपर और नीचे, तो उसने बिल्कुल ही उस स्फेरिकल कर दिया। सर सी तो पी और एस का होगा ना ओवरलैप। और वो भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है? जी एस सर, और ये और डी समझ नहीं आया। डी है ही नहीं, मतलब डी या तो एंड टू एंड ओवरलैप होता है या पैरेलल में ओवरलैप होता है, ये डायगोनल के अंदर तो ओवरलैप नहीं होता, ठीक है? मतलब डायगोनल है ना, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ, मतलब ये डायगोनल में तो ओवरलैपिंग है ही नहीं, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली तो वी दिस इज सेम क्वेश्चन, सो इसका how many sigma bonds are present in this molecule, मतलब it's the same one के बस the only trick है इसके, वो CH2 सारे वो दो H's हैं, ठीक है? CH एक H, CH2, मतलब उनके आगे H लगा दो, H इससे 18 ही आ रहा है। 18 आ रहा है, ठीक है? 18 ही होगा। जस्ट रिमेंबर कि वो बाकी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक होगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है? 18 है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसी के, अब ये कह रहे हैं इसमें, चलो पाई बॉन्ड्स मुझे बता दो, कितने पाई बॉन्ड्स है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स डज इट हैव? 3। See, because there's a pi bond here, and a pi bond over here. अच्छा, और अच्छा, वो कह रहा है what type of bonds break and bond formation occurs in the addition polymerization of alkenes. मैं इक्वेशन लिख देता हूँ. Addition polymerization is you've got double bonds, ठीक है? ये O levels का मतलब alkene होता था, ethene. तो you have these molecules. सर पाई बॉन्ड ब्रेक करती है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होती है। हाँ, तो वो बीच में ना डबल बॉन्ड टर्न्स इनटू अ सिंगल बॉन्ड उनके बीच में. तो जब डबल बॉन्ड टर्न्स इनटू अ सिग्मा बॉन्ड, तो दैट मींस अ पाई बॉन्ड हैज ब्रोकन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इज स्टिल देयर, राइट? तो वो जो पाई बॉन्ड था ना, दैट हैज ब्रोकन, और फिर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा, जो उनके आपस में लिंक अप करेगा. सो द बॉन्ड दैट ब्रेक्स इज पाई ओनली, बिकॉज डबल बॉन्ड टर्न्स इनटू अ सिंगल बॉन्ड. सो सिग्मा अभी भी है, द पाई बॉन्ड इज गॉन. इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, which elements have atoms that can form pi bonds? जब वो कहता है that can form pi bonds, he's basically talking about that can form double bonds or triple bonds. सर 1 2। ठीक है? फ्लोरीन can never form a double bond, ठीक है? नाइट्रोजन can, मतलब नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड, it forms a triple bond. Oxygen forms a double bond. तो okay, but he's saying कि atoms of other elements. तो मतलब can nitrogen form double bonds with atoms of other elements? Do you know a molecule where nitrogen is forming a double bond with some other element? सर हो सकता है शायद। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकता है, तो किसी किसी HCN का मॉलिक्यूल होता है, इट फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड विद C एज वेल. ऑक्सीजन भी बहुत सही, इन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक जी एसिड सर, में कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद कार्बन आटम, ठीक है? सो इट डज. फ्लोरीन नेवर, फ्लोरीन इज ग्रुप 7, इट ओनली मेक्स वन बॉन्ड, दैट्स इट. चलो, ये तो वो हो गया कि सेगमेंट पाई बॉन्ड्स, राइट? नाउ
The other thing is slightly more complicated. Like, the questions are going to be kind of straightforward. Okay. So ये तो sigma pi bonds हो गए, ठीक है. So remember, you've got covalent bonds of two types, sigma and pi bonds. Double bonds where you have pi bonds. The next thing is known as hybridization. So the next thing is hybridization. Now, hybridization is going to be that it's the same thing. It's the same sigma and pi bonds, except कि हम थोड़ा सा detail में जा रहे हैं अब. मतलब उसी चीज को लेके ना we're going into a bit of detail, and we'll only focus on mostly carbon atoms. We'll only focus on carbon atoms. Now, in hybridization, what happens is that you have carbon, and let's talk about Sp3 hybridization first. So the first thing is, when does Sp3 hybridization happen? So it happens. पता नहीं हाँ क्यों हो गया. It happens. Just a second. So it happens whenever. इसको इसे मैं reload कर लूँ. नहीं, I think आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. So just 1 second. अच्छा, so ठीक है, सही है. अच्छा, so this one, Sp3 hybridization. First thing, when does it happen? It happens when so it happens when you have a tetrahedral shape or derived shape. I'm going to explain that. Bonds plus lone pairs. Yeah, in other words, you have a tetrahedral shape. That is when the molecule is Sp3, when the atom is Sp3 hybridized. Or you can say that when it comes to carbon specifically, it's bonded to 4 atoms. It's bonded to 4 atoms. So this is what's going to happen when carbon is bonded to 4 atoms. Carbon's electronic configuration is 2s, 2px, 2py, and 2pz. I'll tell you one thing first. That whenever an atom bonds, the electrons in the outer shell, they get distributed. हाँ जी. सर ये sp3 hybridization आपने tetrahedral shape लिखा है. वो मैं आता हूँ इसका उसमें. क्या मतलब? नहीं, उसमें मैं आता हूँ. अभी उसको छोड़ दो. ठीक है, पहले तो वो समझ लें कि है क्या sp3 hybridization. अच्छा, now remember this. Carbon's original electronic configuration is this thing. It's 2s2 and it's 2px1, 2py1 and 2pz0. That is the original electronic configuration. लेकिन याद रखना कि whenever an atom bonds, its electrons, they get pulled in different directions.
So the electrons, they get distributed. Each electron would try to be in a separate region. कि ये सोचो कि कार्बन के ना 4 electrons है. So it's bonding to 4 hydrogen atoms, right? So if it's bonded to 4 hydrogen atoms, one of the electron is getting pulled by one of the hydrogen atoms, the other one is getting pulled by another hydrogen atom. You've got another electron getting pulled by another hydrogen atom, and there's another. So the electrons are all getting pulled in different directions. तो electrons के जो regions होंगे वो separate होंगे ना, मतलब the electrons would no longer be together. Is that clear? So if you have 4 electrons and you have 4 orbitals, each electron would be in a different space. मतलब एक electron यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा. All of the electrons would be in different areas. Is that clear? And they would occupy different orbitals. Is this point clear? सर तो क्या हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जगह पर होगा? हाँ, क्योंकि देखो ना 4 एटम्स बॉन्ड कर रहे हैं ना उसके साथ. हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वन हाइड्रोजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके आउटर शेल में ना there's 4 electrons. So one electron is getting pulled in this direction, one is getting pulled in this direction, one over here, one over here. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा? They would all get distributed in different areas. Is this clear? Yes sir. तो the thing that will happen is कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते थे ना तो 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0 था. लेकिन this is not what the electronic configuration will be when it's bonding. उसके इलेक्ट्रॉन्स फैल जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिससे यहाँ पे हो रहे हैं. ठीक है, ये क्लियर है सारों को? Siddha, is this clear? Amna, Mahat, is this clear? Safa, is this clear? तो सर Yes. तो सर एज ऑफ नाउ मतलब ये यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स. हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में, पहली बात क्लियर है कि the electrons they get distributed in the outer shell. Yes sir. अच्छा, so when atoms are bonding, they try to distribute the electrons in the outer shell. So they try to distribute electrons in their outer shells. That's the first thing. अच्छा, अब कार्बन पे आ जाते हैं. Carbon had 4 orbitals, right? So this is the carbon's nucleus. अच्छा, and it's got an orbital, it's got a spherical orbital 2s1, जो पहला वाला है. ठीक है, so there's an electron in the 2s. अच्छा, then it's got electrons in the 2px. So let's say this over here is the 2px. It's got electrons in the 2py. So let's say this is the electron in the 2py. And it's got electrons in the 2pz as well. So the vertical axis, that's your 2pz. So I'm going to draw each one of them. The red one is 2px. So there's an electron in the 2px. And there's an electron, the green one is 2py. So there's an electron in the 2py. And there's an electron in the blue one, which is 2pz. अच्छा, ये कार्बन के ना 4 electrons हैं. There are 4 electrons. सर हाँ जी. सर मुझे ये लाइक जो आपने ड्रॉ किए 2s2 के बाद उसके 2s1 हो गया, तो ये मुझे समझ नहीं है. कौन सा? नहीं, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखो तो 6 electrons की, what is the electronic configuration for 6 electrons? It's 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0 होगा ना. E होगा ना 6 electrons. यस सर. तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब एटम बॉन्ड कर रहा होता है ना, the electrons they get distributed, फैल जाते हैं वो. मतलब जो उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, they get distributed. क्योंकि वो एटम्स डिफरेंट जगहों पे पुल कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स. So the electrons would no longer be together. They would be in, वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से. तो 2s2 नहीं होगा. 2s2 में से ना एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाके वो आगे जो खाली जगह पड़ा है उसमें चला जाएगा, अलग ऑर्बिटल में होगा. इज दिस क्लियर?
Yes, sir. तो ये और भी एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है हाँ हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, सारों में। जैसा एल्यूमिनियम है ना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो सारे एलिमेंट्स पे। अभी तो मैं खाली ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो एन एल्यूमिनियम, में भी होगी? हाँ, उस पे हम आते हैं। वो आयनिक है, ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह इज फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक के अंदर तो इशू ही कोई नहीं है ना। आयनिक के अंदर व्हाट हैपेंस इज, वो हमने पहले पढ़ा था, आयनिक के अंदर वन एटम जस्ट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आयनिक के अंदर तो वो मसला ही नहीं है, ओवरलैपिंग तो होगी नहीं ना, क्योंकि आयनिक में होता है कि वो पूरा इलेक्ट्रॉन ही उठ के वो गेन कर लेता है। समझ आइए बात। मतलब अगर अगर ये आयनिक होता ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड हमने बनाया है, इफ दिस वाज आयनिक, तो ओवरलैपिंग तो होती नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन उठ के ये गेन कर लेता, तो इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन उठ के वो इधर आ जाता। समझ आ रही है बात? जी सर, मतलब मेटल्स का मतलब जो हाँ आयनिक वाले से नहीं होगा? हाँ, तो आयनिक में तो ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड्स होते ही नहीं है ना, क्योंकि आयनिक में तो मसला ही कोई नहीं। आयनिक में वो पूरा इलेक्ट्रॉन ही उठ के इधर आ जाता है, या पूरा इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन उठ के उधर चला जाता है। सो आयनिक डजंट हैव ओवरलैपिंग, वो कोवलेंट में ही होती है। अच्छा खैर, मैं वो एल्यूमिनियम का एग्जांपल दे रहा था कि एल्यूमिनियम के अंदर यू हैव 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका जो आउटर शेल है ना, वो CS2 3p1 आता है। मतलब अगर वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इट कम्स आउट टू बी CS2 3p1, Y0 and 3p। अच्छा, लेकिन जब एल्यूमिनियम बॉन्ड करने लगता है ना, द इलेक्ट्रॉन्स दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स, तो वन इलेक्ट्रॉन गोस ओवर हियर। तो एल्यूमिनियम के ना 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, वो तीनों अलग अलग बॉन्ड कर रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ, एक इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ, एक इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ। तो क्लियर है कि एटम्स जो है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटर शेल में दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन दे आर बॉन्डिंग। इज दिस क्लियर? जी सर, मतलब मैक्सिमम मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ताकि बॉन्ड्स बने। हाँ, क्योंकि वो चारों एटम्स डिफरेंट जगहों से आ रहे होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ जगहों पे खींच रहे होंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इकट्ठे नहीं रहेंगे। मतलब 3s2 था ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं होंगे। अगर खाली जगह अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, सर और पिछले वाले शेल से तो नहीं आ सकता ना, जो कि हाँ, कंप्लीटली पिछला फिल्ड है? नहीं नहीं, वो पिछला शेल तो एटम के अंदर पड़ा हुआ है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स को इट्स नॉट एबल टू पुल दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब ये कि व्हाट विल हैपन, कार्बन के पास ना हाइड्रोजन आ रहे हैं 4। हाइड्रोजन क्या था? स्फेरिकल था। तो एक ये ग्रीन, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। वन ऑफ देम इज द रेड वन। ईच हाइड्रोजन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दे ऑल लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, हाइड्रोजन 1s1 है, ठीक है। सो there's this other hydrogen that's coming in, so and then there's this fourth hydrogen that is coming in, और वो हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेने आ रहे हैं। अच्छा, फोर्थ हाइड्रोजन जो है ना, वो ब्लू वाला है, वो टॉप से आ रहा है। तो ईच हाइड्रोजन हैज अ न्यूक्लियस, एंड दैट न्यूक्लियस इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, ये भी, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू ओवरलैप, क्योंकि नॉन मेटल्स वो गेन तो कर नहीं सकते, वो बस उसके इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज, इसको देख लो अब, ये जो रेड वाला है, सर हाँ सर ये जो तीन हमारे पास अपने जो बनाया है, ये कार्बन का जो शेप है, हाँ, इसके अंदर एक स्फेरिकल और उसके साइड पर डंबल्स होती है, मुझे समझ में। नहीं क्या था वो, 2s1 था, 2px1 था, 2py1 था और 2pz1 था ना। तो 2s का इलेक्ट्रॉन इधर स्फेरिकल में घूम रहा है ना, कहीं ना कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, टू एस स्फेरिकल और जो पी 2p, ऑर्बिटल तो वो हाँ, साइड में। 2px जो होगा वो रेड वाला होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसका इधर घूम रहा है। 2py का इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, 2pz का इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये हाइड्रोजन आया एंड इट्स ट्राइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन, तो वो कार्बन का ना, उसे रेड वाला इलेक्ट्रॉन नजर आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो पुल होके किसकी तरफ आ जाएगा? हाइड्रोजन की तरफ। क्लियर है? और कार्बन का वो दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। कार्बन का एक ऑर्बिटल जो है ना, वो पुल होके इट गेट्स ड्रैग्ड टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम। इज दिस क्लियर? मतलब यस सर, और इसमें तो तो ये सिग्मा बॉन्ड बना ना, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, राइट? कि
हाइड्रोजन आया, उसने उसके इलेक्ट्रॉन को पुल किया अपनी तरफ, सो देयर इज ओवरलैपिंग दैट्स हैपनिंग ओवर हियर, और वो इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे जाना छोड़ देगा या बहुत कम कर देगा. नाउ देयर इज दिस अदर हाइड्रोजन एटम दैट्स कमिंग इन, वो इसके इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, ठीक है. तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ड्रैग करेगा, और दोनों के इलेक्ट्रॉन इधर कहीं बीच में ना स्टक हो जाएंगे, ठीक है. एंड द इलेक्ट्रॉन वुड स्टॉप गोइंग टू द अदर साइड. ये भी क्लियर है? सर हाँ. सर इसका क्या मतलब है कि इट वुड स्टॉप गोइंग टू द अदर साइड, लाइक एक ही साइड पे तो वो बॉन्ड कर रहा है. नहीं, क्योंकि पहले उसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा था ना, दोनों पूरे एक्सेस पे ना, ग्रीन वाले पे. लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन आया तो वो क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन पुल होता हुआ किस साइड पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना. सिग्मा बॉन्ड्स में जी सर. सिग्मा बॉन्ड्स में क्या हो रहा था, वो दूसरी साइड पे जाना छोड़ देता है ना. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब वो ओवरलैपिंग हो रही थी तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर पुल हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पे जाना उसने तकरीबन छोड़ दिया था ना इलेक्ट्रॉन ने. समझ आई ये बात? यस सर. तो मतलब दूसरी साइड या तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी या बहुत थोड़ी सी रह जाएगी, कि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी वेरी वेरी लेस. अच्छा, अब इसको बस खत्म करते हैं कि अब 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो वो ब्लू वाला ऑर्बिटल, ठीक है. तो ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना दोनों के इधर कहीं बीच में स्टक हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दूसरी साइड पे जाना छोड़ देगा. अब पीछे रह गया कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन, दैट्स द स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन. तो वो इलेक्ट्रॉन भी एक तो उसे नीचे से बाकी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ पुश करेंगे, और ऊपर से हाइड्रोजन है वो उसको पुल कर रहा है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल होता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो उसका भी स्फेरिकल ऑर्बिटल की जो शेप है चेंज हो जाएगी. ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि पहले उन ऑर्बिटल्स की शेप कुछ और थी, there was a spherical orbital, there was a px py pz orbital. Now what's happening is, because of the 4 hydrogen atoms, all 4 of these electrons are getting pulled in 4 completely different directions, and they're forming sigma bonds. तो इसका मतलब है when carbon is bonding, its orbitals kind of look completely different. Its orbitals look like this. That one orbital gets pulled in the upward direction, one orbital gets pulled by another atom in this direction, one of carbon's orbital or electron is getting pulled in this direction, and the third one is getting pulled in this direction. तो idea clear है कि, so that means carbon has a totally, the orbitals of carbon have a totally different shape when it's bonding. Is this clear? मतलब स्फेरिकल खत्म हो गए, px py pz खत्म हो गए, मतलब खत्म नहीं हुए, the electrons are still there. It's only that the shape is now completely different. It's a completely different shape. Is this clear? सर हाँ जी. सर तो ये कुछ शेप तो उन्होंने टेट्राहेड्रल बनाई, एंगल क्या होगा इसका? एंगल 109.5 होगा, लेकिन पहली चीज तो ये तो क्लियर है ना कि इसको हम हटा देते हैं. अच्छा, ये तो क्लियर है कि now there is no 2s, there is no 2px. I mean the electrons are still there, लेकिन there is no spherical orbital, there is no 2s. 2s spherical था ना, वो spherical किधर गया? Spherical orbital के इलेक्ट्रॉन को पुल करता हुआ the hydrogen pulled it upwards, मतलब उसकी शक्ल इस तरह की बन गई है. Now it's no longer spherical. तो इसका मतलब है you would have to give these orbitals different names, क्योंकि उनकी शेप ही डिफरेंट है अब. So instead you start calling them sp3 hybridized orbitals. मतलब उनको अब ना आप 2s 2px 2py 2pz नहीं कहोगे. ऑर्बिटल्स वही हैं, इलेक्ट्रॉन्स वही हैं, लेकिन उनकी शक्ल चेंज हो गई है क्योंकि they're getting pulled in 4 different directions. So instead you start calling those 4 orbitals with a different name, क्योंकि s का मतलब spherical था, px का मतलब डबल शेप था, तो इन सारे ऑर्बिटल्स में अभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही है. But because of bonding, the shape has completely changed. So this is known as sp3 hybridization. That when carbon is bonded to 4 atoms, its orbitals, they look like this. Okay, there's a sp3 hybrid orbital, there's another sp3 hybrid orbital, there's another sp3 hybrid orbital, and there's another sp3 hybrid orbital. Is this clear? और मैं फिर से बता रहा हूँ कि सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये
Hybridization is just the orbitals changing shape because they're getting pulled by different atoms and the electrons are getting pulled in 4 different directions. So the spherical orbitals and the dumbbell-shaped orbitals, they're all gone. The shape of the orbitals that you're left with is something, it looks something like this. कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है. So the orbitals, they kind of look like this. So there is no longer any s orbital. There's no longer anything that resembles a px or a py or a pz. And instead you give them different names. Uni orbital को आप different names दे देते हो. You start calling them sp3, sp3, and the reason you give them the same name is because they all look exactly the same. सही है, clear है? सर हाँ जी. सर ये जो हमारे पास नीचे 3 है, ये हमारे पास p ऑर्बिटल्स आ गए ना, जो हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. नहीं, अब और लेकिन ऊपर अब मसला ये है कि p और s में कोई फर्क ही नहीं रहा. मुझे तो इधर तुम्हें कौन सा नजर आ रहा है कि s था और कौन सा p था? वो तो पहले मैंने ड्रॉ किया था तो तुम्हें पता है ना कि नीचे p था. या सर, और ऊपर आपने एस ऑर्बिटल बनाया था वो हाइड्रोजन के साथ, हाँ, तो वो मतलब लेकिन अब सारों की शक्लें एक जैसी हो गई है ना. या सर. तो इसका मतलब है अब ना कोई एस रहा है ना कोई पी रहा है. मतलब शक्ल से तो वो अब सारों की शक्लें एक जैसी हो गई है ना. ठीक है, क्लियर है? सर हाँ जी. सर तो इसकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी? वो भी पढ़ते हैं, अभी कल जाके डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन ये क्लियर है आइडिया के. अच्छा हाँ, वो ये जो आफरीन, दिस ओवरलैप इज गोइंग टू बी एन sp3 ओवरलैपिंग विद एन s. हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है. तो sp3 ऑर्बिटल यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा ना ऊपर टॉप पे. इधर भी हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है. सो इट्स एन sp3 ओवरलैप विद एन s ऑर्बिटल. ठीक है, वो बात क्लियर है. तो इसका डिटेल में फिर ना कल वो इसका करते हैं. ठीक है, लेकिन आइडिया क्लियर है रिजवान? इज दिस क्लियर? यस सर. तो आपको कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 एटम्स, उसके जो चारों ऑर्बिटल्स हैं उनकी शक्ल चेंज हो जाती है. और उनकी शक्लें चेंज हो जाती हैं तो यू गिव देम अ न्यू नेम. मतलब है वही चीज, अभी भी वही है, लेकिन द शेप इज डिफरेंट. सो यू गिव देम न्यू नेम्स. यू स्टार्ट कॉलिंग देम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज.